کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کے درس میں عشرہ ذی الحجہ کے بعض فضائل اور اس کے بعض مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ متعدد مفسرین نے ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن و رات مراد لیے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جاتی ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان 10 ایام کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی اپنے مخلوقات میں سے کسی کی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی زیادہ عظیم، انتہائی زیادہ اہمیت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی اہمیت بتانے کے لیے ان کی قسم کھائی۔ علماء نے، مفسرین نے اسی لیے ان 10 دنوں کو انتہائی زیادہ اہمیت والا قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ ان 10 دنوں میں اعمال کی فضیلت بقیہ دنوں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم جو نیکیاں انجام دیتے ہیں ان کی فضیلت، ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان ایام میں عبادت کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی بھی ایام نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کے علاوہ، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال
बक़िया दिनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महबूब हैं। हम इन 10 दिनों में जो नमाज़ें अदा करते हैं, जो फ़राइज़ अदा करते हैं, वो अल्लाह ताला को इंतहाई ज़्यादा महबूब हैं। हम इन 10 दिनों में जो सुनन व नवाफिल अदा करते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई ज़्यादा मकबूल, इंतहाई ज़्यादा महबूब हैं। इन 10 दिनों में हम जो सदक़ा और खैरात करते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई ज़्यादा महबूब है। इन 10 दिनों में हम जो रोज़ा रखते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई ज़्यादा महबूब है। इन 10 दिनों में हम जो क़ुरबानी करते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई ज़्यादा महबूब है। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन 10 दिनों के आमाल जिहाद से भी अफजल हैं, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इन 10 दिनों के आमाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल हैं, सिवाय ऐसा जिहाद जिसमें इंसान अपनी जान और अपना माल लेकर के निकला और कुछ भी वापस लेकर के नहीं लौटा। यानी अपनी जान अल्लाह ताला के रास्ते में क़ुरबान कर दिया और अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में क़ुरबान कर दिया और शहादत के मर्तबे पर फाइज़ हो गया, तो उसको ये शहादत का मर्तबा हासिल होना इन 10 दिनों की इबादत से अफजल है। उसके अलावा कोई भी अमल अल्लाह ताला के नज़दीक दूसरे अय्याम में इन 10 दिनों के मुकाबले में अफजल नहीं है। सबसे अफजल अमल इन 10 दिनों में की जाने वाली इबादतें हैं। हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, सुनन पढ़ते हैं, सदक़ा खैरात करते हैं और दीगर भलाई के काम करते हैं, लोगों के साथ भलाई का मामला करते हैं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं, रोज़े रखते हैं और 10वीं ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी करते हैं, यह सब आमाल अल्लाह ताला के यहाँ बक़िया दिनों में किए जाने वाले आमाल से बहुत ही ज़्यादा अफजल और अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई ज़्यादा महबूब हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों की कदर करें, इन 10 दिनों में नमाज को तर्क ना करें, सुन्नतों को तर्क ना करें, क़ियामुल लैल का एहतमाम करें और सदक़ा और खैरात कसरत से करें और क़ुरान करीम की तिलावत बकसरत करें, अरफा के दिन का रोज़ा रखें और 10 ज़िलहिज्जा को सलातुल ईदुल अज़हा की नमाज अदा करें और उसके बाद क़ुरबानी करें। ये अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों में किए जाने वाले अफजल आमाल हैं। इसी तरह से इन 10 दिनों में पाया जाने वाला एक दिन यौम अरफा है कि उस दिन हाजी मैदान अरफात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक़ूफ़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खातिर समाए दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और उनके इकट्ठा होने पर फ़ख्र करता है कि ये लोग परागंदा हाल मेरे पास आए। अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन अकसरा मिन अन युअतिक़ल्लाहु फ़ीहि अबदम मिनन नारी मिन यौम अरफा। सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह ताला अरफा के दिन जहन्नम से जितने ज़्यादा लोगों को आज़ाद करता है, उतना दूसरे दिनों में
जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता है। यानी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला जो जहन्नमियों को जिस दिन आज़ाद करता है वो अरफा का दिन है। जो लोग मर जाते हैं और उनका ठिकाना मरने के बाद जहन्नम होता है, उनके लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है उनके अमल के हिसाब से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला जहन्नम से जो बंदों को आज़ाद करता है वो अरफा के दिन आज़ाद करता है। अरफा के दिन अल्लाह ताला खुसूसी रहमत अपने गुनहगार बंदों पर करता है। ये अरफा के दिन की खुसूसी फ़जीलत है। इसी तरह से अरफा के दिन का रोज़ा यह 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है कि आप एक दिन का रोज़ा रखें जो इन 10 दिनों में से एक मखसूस दिन है, 9 ज़िलहिज्जा। उस दिन का रोज़ा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर रखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौम यौम अरफता युकफ्फिरु सनतैनी माज़ियहु व मुस्तक़बिलहु, कि अरफा के दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, एक गुज़िश्ता साल के गुनाहों का और एक आने वाले साल के गुनाहों का। यानी आपने गुज़िश्ता साल जो गुनाह कर चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ़ कर देता है अरफा का रोज़ा रखने की वजह से। और आइंदा 1 साल तक जो गुनाह सरज़द होने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बखूबी मालूम है कि कौन गुनाह करेगा और कौन नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह करने से पहले ही उन तमाम गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करता है और कहता है कि उन तमाम गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया। इसी तरह से अगर कोई शख्स 30 साल 40 साल अंदाज़ा लगाइए अरफा का रोज़ा रखता है, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखता है, तो उसके 70 साल 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी आप हर साल जो रोज़ा रखें तो हर साल 2 मरतबा 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। यानी आपने इस साल रोज़ा रखा तो साबका साल के गुनाह माफ़ हो गए और अगले साल के गुनाह माफ़ हो गए। फिर अगले साल आपने रोज़ा रखा तो साबका साल के गुनाह माफ़ हो गए और फिर अगले साल के गुनाह माफ़ हो गए। तो अरफा का रोज़ा रखने से बैक वक्त 1 साल के गुनाहों की 2 मरतबा माफ़ी मिलती है अगर आप लगातार रोज़ा रखते हैं। ये महज सिर्फ़ एक दिन के रोज़े की बात है जो तकरीबन 12-13 घंटे पर मुश्तमिल होता है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर खाने पीने और दीगर उन तमाम चीज़ों से रुके रहें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ज़्यादा सवाब अरफा के दिन रोज़ा का रखा है। इसी तरह से जो लोग हज करने जाते हैं अरफा के दिन वक़ूफ़ अरफा के वक्त, यानी जब वो मैदान अरफात में वक़ूफ़ करें तो उनके लिए अरफा के दिन रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है। अरफा का रोज़ा उन लोगों के लिए है जो हज में शामिल नहीं हैं। जो लोग हज नहीं कर रहे हैं वो अरफा के दिन यौम अरफा को रोज़ा रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अरफा के रोज़े का ताल्लुक़ वक़ूफ़ अरफा से नहीं है। वक़ूफ़ अरफा से नहीं है कि जिस वक्त जिस घड़ी जिस दिन वक़ूफ़ अरफा हो उसी दिन रोज़ा रखा जाए, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के दिन रोज़ा
को रोज़े की फ़जीलत बयान की गई है। यौम अरफा शरीयत में 9 ज़िलहिज्जा को कहते हैं और 10 ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर कहते हैं और 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को अय्यामुत तशरीक़ कहते हैं। ये साल के दिनों के नाम हैं, जिस तरह से हफ्ते के दिनों के नाम हैं यौमुल जुमा, यौमुस सब्त वग़ैरह, और महीने के दिनों के नाम हैं 13, 14, 15 अय्यामे 20 जिन्हें कहा जाता है। उसी तरह से अरफा 9 ज़िलहिज्जा का नाम यौम अरफा है और 10 मुहर्रम का नाम यौम आशूरा है। तो ये दिनों का नाम तारीख़ के हिसाब से रखा गया है, यानी जिस दिन यह तारीख़ पाई जाएगी उस दिन का यह नाम रखा जाएगा। उसका वक़ूफ़ अरफा से रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जिस दिन वक़ूफ़ अरफात हो उस दिन रोज़ा रखा जाए, बल्कि जब भी अरफा का दिन लुग़त में पाया जाएगा, 9 ज़िलहिज्जा जहाँ भी पाया जाएगा 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखा जाएगा, क्योंकि लुग़त में 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा कहते हैं और अरफा के दिन की फ़जीलत बयान की गई है, उस दिन के रोज़े की फ़जीलत बयान की गई है। उसके बाद इन 10 दिनों के आमाल में से यौमुन नहर के दिन किए जाने वाले आमाल हैं। उस दिनों में, उस दिन यानी यौमुन नहर के दिन सबसे अफजल किया जाने वाला अमल कुर्बानी है। क्या है? कुर्बानी है, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जानवर कुर्बान किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर की फ़जीलत को बयान करते हुए फरमाया, अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल क़र्र, कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अज़ीम दिन कुर्बानी का दिन है, और दूसरा जो सबसे अज़ीम दिन है वो क़र्र का दिन है। मुफ़स्सिरीन ने, शारिहीन ने क़र्र की तफ़सीर 11 ज़िलहिज्जा से की है, यानी कुर्बानी के बाद सबसे अफजल दिन इन दिनों में तशरीक़ का पहला दिन है, क्योंकि इन दिनों में कुर्बानी की जाती है और इन दिनों में इन दिनों में खा पी करके खुशियाँ मना करके इबादत की जाती है। और इस दिन यौमुन नहर को और अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा ना रखना इबादत है। क्या है? रोज़ा ना रखना इबादत है। जिस तरह से रमज़ान में रोज़ा रखना इबादत है, उसी तरह से कुर्बानी के दिन और अय्यामे तशरीक़ में 11, 12 और 13 तारीख़ों में और ईदुल फ़ित्र के दिन रोज़ा ना रखना इबादत का काम है। और अगर कोई इन 5 दिनों में रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला की मासियत करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और अल्लाह ताला की शरीयत में ऐसी चीज़ का इजाफ़ा करता है जो जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मशरू करार नहीं दिया है। इन 10 दिनों में अफजल आमाल की बात चल रही है। इन 10 दिनों में सब और अफजल आमाल रोज़े के अलावा, अरफा के दिन के रोज़े के अलावा 10 ज़िलहिज्जा को यानी यौमुल नहर को कुर्बानी करना ये अफजल अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि हमने आपको कौसर अता किया, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। वनहर ऊँट ज़बह करने को नहर कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। और ये नहर सिर्फ़ 10 ज़िलहिज्जा को किया जाता है, यानी साल में
क़ुरबानी सिर्फ़ एक मरतबा की जाती है, यौम नहर को और बक़िया 3 दिनों को, यानी 11, 12, 13, इन 4 दिनों के अलावा बक़िया अय्याम में अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में जानवर ज़बह करके इबादत करता है, क़ुरबानी पेश करता है, तो वह क़ुरबानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि क़ुरबानी का वक्त मुतअय्यन है। और कोई भी इबादत जब मुतअय्यन कर दी जाती है वक्त के साथ, तो उसी वक्त ही में कबूल होती है। आप अरफा के दिन क़ुरबानी करना चाहेंगी, बहुत बड़ी फ़जीलत का दिन है, आपकी क़ुरबानी काबिल कबूल नहीं है। आप ईद उल फितर के दिन क़ुरबानी करना चाहें और सोचें कि क़ुरबानी है, तो ये क़ुरबानी आपके यहाँ काबिल कबूल नहीं है। आप 14 ज़िलहिज्जा को, 15 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी करना चाहें और ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम क़ुरबानी कर रहे हैं, ये क़ुरबानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि क़ुरबानी का वक्त मुतअय्यन है। उसी वक्त में क़ुरबानी हो सकती है, ना उससे पहले होगी और ना उसके बाद होगी। जिस तरह से नमाज ना तो वक्त से पहले पढ़ी जा सकती है और ना ही वक्त के बाद पढ़ी जा सकती है, जिस तरह से रोज़ा रमज़ान के अलावा नहीं रखा जा सकता फ़र्द रोज़ा, उसी तरह से रमज़ान के पहले और रमज़ान के बाद भी नहीं रखा जा सकता। रोज़े का वक्त मुतअय्यन है, इबादतों का वक्त मुतअय्यन है, ज़कात जो फ़र्द होती है उसका वक्त भी मुतअय्यन है, इसी तरह से क़ुरबानी का भी वक्त मुतअय्यन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की अहमियत को उजागर करते हुए फ़रमाया, मन वजद साअतन फ़लम युज़ही फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिसके पास क़ुरबानी की ताकत हो, हैसियत हो, वुसअत हो, कुशादगी हो, माल की फरावानी हो, और फ़लम युज़ही, उसने क़ुरबानी का इरादा नहीं किया, फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, तो उसको हमारी ईदगाह के करीब नहीं आना चाहिए। यानी जिसके पास क़ुरबानी की ताकत है और क़ुरबानी का इरादा नहीं रखता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी ईदगाह में आने से मना किया है। उसको ईद करने का, ईद की खुशी मनाने का कोई हक़ हासिल नहीं है। ये हदीस क़ुरबानी की अहमियत और क़ुरबानी किस कदर अहम है और कितनी ताकीद आई है, उससे इस हदीस से, उसके बारे में इस हदीस से पता चलता है। इसीलिए उलमा ने कहा है कि जिसके पास क़ुरबानी की ताकत है, क़ुरबानी करने की हैसियत है, उसको क़ुरबानी करना चाहिए, उसको क़ुरबानी करना चाहिए। और जिसके पास क़ुरबानी की ताकत नहीं है, क़ुरबानी का पैसा नहीं है, क़ुरबानी का जानवर नहीं है, तो वह माज़ूर है, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला अहलि कुल्लि बैतिन फ़ी कुल्लि आमिन उज़हिया। सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी और नसई की रिवायत है कि हर घर वालों पर हर साल क़ुरबानी वाजिब है, हर घर वालों पर हर साल क़ुरबानी वाजिब है। यानी एक घर वालों की तरफ से हर साल एक क़ुरबानी देना वाजिब है, उनको क़ुरबानी करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अपने मुसल्ले के करीब आने से, ईदगाह के करीब आने से मना किया है कि जिनके पास क़ुरबानी की ताकत है फिर भी क़ुरबानी नहीं करते हैं, फिर भी क़ुरबानी नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर कोई क़ुरबानी का इरादा रखता है, क़ुरबानी की नीयत रखता है कि मैं 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला के लिए जानवर क़ुरबान करूँगा, तो उसे 10 ज़िलहिज्जा का चाँद निकलने के बाद अपने बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, अपने बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ क़ुरबानी का इरादा करने वालों को अपने नाखून और बाल काटने से मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अरबा की रिवायत है, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अराद अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फारिही, कि जब तुम ज़िलहिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से कोई क़ुरबानी का इरादा रखता हो तो उसको चाहिए कि अपने बाल और नाखून को ना तराशे, अपने बाल और नाखून को ना काटे। ये उन लोगों के लिए सरीह हुक्म है जो क़ुरबानी का इरादा रखते हों। यानी क़ुरबानी का अगर किसी का इरादा है क़ुरबानी करने का तो इन 10 दिनों में अपने नाखून और बाल ना काटे। ये अल्लाह ताला की इबादत है। क्या है? अल्लाह ताला की इबादत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कामों से रोका है। यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो अल्लाह ताला की इताअत करता है। बहुत सारी चीज़ें ना करके इबादत कहलाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनसे मना किया गया है और इंसान उनसे बचता है तो उससे बचने का उसे सवाब मिलता है। जैसे कोई आदमी ईद उल फितर के दिन रोज़ा ना रखे तो उसे वो रोज़ा ना रखने का सवाब मिलता है, जिसे सुन्नते तरकिया कहा जाता है, कि ऐसी सुन्नतें जिन्हें छोड़ देने ना करने का वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है। जैसे अय्याम तशरीक़ में कोई अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हुए रोज़ा ना रखे तो उसे रोज़ा ना रखने का सवाब मिलता है। तो जिन्हें सुन्नते तरकिया कहा जाता है, जैसे ईदैन के लिए सारी नमाज़ों के लिए जो जमात के साथ अदा की जाती हैं उनके लिए अज़ान और इक़ामत कहना क्या है? फ़र्ज़ है या मुस्तहब है? कम से कम अज़ान और इक़ामत कहना। लेकिन ईद उल फितर ये जमात की नमाज है, जमात के साथ पढ़ी जाती है, लेकिन अज़ान और इक़ामत कहना ईद उल फितर के लिए मसनून नहीं है। बल्कि अगर कोई अज़ान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत कहता है तो ये बिदअत का इर्तिकाब करता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और आपने अज़ान और इक़ामत नहीं कही। तो यहाँ पर अज़ान और इक़ामत ना कहना ये सुन्नत की मुताबकत करना है, सुन्नत पर अमल करना है, और सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है। सुन्नत पर अमल करने से सवाब मिलता है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से मना कर दें तो ज़ाहिर है कि उस हुक्म की इताअत करने का आपको सवाब मिलता है। इसी तरह से क़ुरबानी के दिन 4 हैं, यानी यौमुन नहर और बक़िया अय्याम तशरीक़ 11, 12 और 13 ये क़ुरबानी के दिन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़िबहुन, कि पूरे अय्याम तशरीक़ ये ज़बह करने के अय्याम हैं। आप इन दिनों में क़ुरबानी अल्लाह ताला के रास्ते में करें तो क़ुरबानी मकबूल होगी, वो क़ुरबानी मकबूल होगी। यानी क़ुरबानी का वक्त मुतय्यन है। ईद उल अज़हा के नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर 13 ज़िलहिज्जा का सूरज गुरूब होने तक यह क़ुरबानी का वक्त है। अगर कोई 13 ज़िलहिज्जा को सूरज गुरूब होने के बाद क़ुरबानी करता है तो उसकी क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी। या ईद उल अज़हा के दिन नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुरबानी करता है तो उसकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अय्यामुन नहर यौमुल अज़हा
व सलासत अय्यामिन बादहू कि कुर्बानी के दिन 4 हैं, अज़हा का दिन यानी कुर्बानी का दिन, और उसके बाद 3 दिन। और लुग़त में अय्याम का इतलाक़ कम से कम 3 दिनों पर होता है, क्योंकि एक दिन को यौम और 2 दिन को यौमान कहा जाता है, और 2 से ज़्यादा 3, 4 दिनों को अय्याम कहा जाता है। तो कुर्बानी के दिन को यौमुन नहर और तशरीक़ के दिनों को 11, 12, 13 तारीख़ों को अय्यामुत तशरीक़ कहा जाता है। लुग़त के भी एतबार से अय्याम तशरीक़ 3 दिन हैं। अगर अय्याम तशरीक़ के दिन 2 दिन होते तो उन्हें यौमा अत-तशरीक़ कहा जाता कि तशरीक़ के 2 दिन। लेकिन अरबी ज़बान अपने अरबी ज़बान होने की वजह से हुज्जत है, यानी आप जो इस्तिदलाल करते हैं अरबी ज़बान के क़वाइद के एतबार से इस्तिदलाल करते हैं। जैसे अम्र ये वजूब पर दलालत करता है कि ये इजबारी होता है, न ही हुर्मत पर मना, किसी काम से मना करना ये हुर्मत पर दलालत करता है, मना करने पर दलालत करता है। उसी तरह से बक़िया चीज़ें भी लुग़त के हिसाब से हुज्जत हैं। अगर शरीयत को 2 ही दिन तशरीक़ का दिन रखना मकसूद होता तो उसको तख़सीस के साथ कह देती कि यहाँ लुग़त नहीं चलेगी बल्कि शरीयत चलेगी, और शरीयत 11 और 12 को तशरीक़ मानती है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने अय्यामुत तशरीक़ कहा है। क्या कहा है? अय्यामुत तशरीक़। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसों में ये लफ्ज़ वारिद है। तो उससे कम 3 दिन मुराद होता है, 3 दिन मुराद होता है, उससे कम मुराद नहीं हो सकता। तो अय्याम तशरीक़ आसार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और लुग़त के एतबार से 3 दिन हैं। इसी तरह से अगर कोई ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुरबानी कर लेता है तो उसकी क़ुरबानी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होती है, उसके ऊपर दोबारा क़ुरबानी करना वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी ने अच्छी नीयत से, क्या नीयत हसना से, अच्छी नीयत से ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही क़ुरबानी कर दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि ये खिलाने पिलाने का दिन है, पड़ोसियों के लिए, घर वालों के लिए मैंने क़ुरबानी कर दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नीयत खालिस होने के बावजूद कहा तिल्का शअतु लहमिन, वो सिर्फ़ गोश्त की बकरी है, तो आपकी क़ुरबानी अदा नहीं हुई। मन ज़बह क़बल अस्सलाति फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सिही, कि जिसने नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुरबानी कर दी तो उसने अपनी ज़ात के लिए ज़बह किया, उसने अल्लाह ताला के लिए ज़बह नहीं किया। वमन ज़बह बअद अस्सलाति फ़क़द तम्म नुसुकुहु, और जिसने नमाज के बाद ज़बह किया तो उसकी क़ुरबानी मुकम्मल हुई। व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। यानी अगर कोई शख्स ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही क़ुरबानी कर लेता है तो उसकी क़ुरबानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत के साथ उसे दोबारा क़ुरबानी करने का हुक्म दिया है। मन कान ज़बहा क़बल अन युसल्लिया फ़लयज़बह मकानहा उख़रा, जिसने नमाज़ पढ़ने से पहले जानवर को ज़बह कर दिया तो उसे चाहिए कि उसकी जगह दूसरा जानवर ज़बह करे, ताकि उसकी क़ुरबानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल हो सके। मैंने शुरू ही से कहा है या पहले ही दर्स से कहा है कि कोई भी अमल अल्लाह ताला के यहाँ जो कबूल होता है उसके लिए 2 बुनियादी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त
इखलास जिसे तौहीद कहते हैं, शिर्क से पाक हो, और दूसरी शर्त कि वो सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, उस पर सुन्नत की मुहर लगी हुई हो, स्टैंप लगी हो। अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले कितने ही ज़्यादा इखलास के साथ कुर्बानी करे और कितना ही महंगा और बड़ा जानवर ज़बह करे, लेकिन सुन्नत की मुखालिफ होने की वजह से, सुन्नत की मुखालफत पाई जाने की वजह से उसका जानवर, उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अगर उसके पास इस्तिताअत है तो उसके ऊपर दूसरा जानवर ज़बह करना क्या है? वाजिब है। इसी तरह से जानवर की कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हिदायत दी हैं। बहुत सारी हिदायत हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ बाज़ का तज़किरा करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अमरना अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के जानवर में हमें हुक्म दिया कि हम क़ुरबानी का जानवर ख़रीदते वक्त कान और आँख अच्छी तरह से देख लें, कान और आँख अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि अगर कान कटा रहेगा या आँख नहीं रहेगी, आँख फूटी रहेगी या जानवर अंधा रहेगा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्बउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही अल औराउल बय्यिनु अवरुहा, कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूसरे रवायतों में है कि वो काफ़ी नहीं हैं, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। पहला जानवर ऐसा जानवर जो अंधा हो और उसका अंधापन ज़ाहिर हो, ऐसा जानवर जो अंधा हो और उसका अंधापन ज़ाहिर हो। वल मरीज़तुल बय्यिनु मरदुहा, बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़ेह हो कि ये बीमार जानवर है। अल अरजाउल बय्यिन ज़ुलउहा, इसी तरह से लंगड़ा जानवर जिसका पैर वाज़ेह तौर पर पता चले कि वो लंगड़ा है। और चौथा जानवर इतना दुबला पतला हड्डी वाला जानवर कि जिसमें गूदा ना हो, जिसमें गोश्त ना हो। ये 4 तरह के मखसूस जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी आप पेश नहीं कर सकते। अगर आपने इन जानवरों की कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ताला के यहाँ ये काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी इबादतों को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हम इस अशरे में जो भी इबादतें कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसे कबूल फ़रमा और उसे इखलास के साथ कर दे और उसे सुन्नत के मुताबिक कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।